Sir, today's topic of mine is importance of geotechnical engineering and why subsoil investigation need be done at the beginning of any new civil engineering project. Reasons explained. Now, coming over to my first slide. Geotechnical engineering is actually a sub-branch of civil engineering. Often we refer to it as soil engineering or ground engineering. It deals with soil, rock, and underground water and their relation to design, construction and operation of engineering projects. अब आप लोग कहेंगे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से क्या मतलब है? डिजाइन का मतलब ये है कि जब हम डिटेल्ड फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने फील्ड पे जाते हैं, आई विल प्रेफर स्पीकिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन. तो based on the test results data we collect from the field and prepare our result sheets, we recommend the suitable foundation for any respective structure. And during construction का मतलब क्या है? We have to confirm कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करा था उसी तरीके का डाटा हमें फील्ड पे एनकाउंटर हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो हम एक नोट लिखते हैं कि फील्ड इंजीनियर इंचार्ज कंसर्न शुड रेफर टू अस. और ऑपरेशन से क्या मतलब है कि आज की डेट में कुछ कोड्स ने रिवीजन कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि जब कंस्ट्रक्शन के काम के दरमियान कुछ अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स अगर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आ जाती हैं तो उसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों से कहा जाता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज भी यू कैन एड ऑन टू योर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज. So this is what geotechnical engineering is, and geotechnical engineering is related to engineering geology and geotechnics as well. अब engineering geology की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम किसी रॉकी टेरेन में काम करते हैं तो वहाँ जियोलॉजी हमें पढ़नी जरूरी होती है. क्योंकि आज के डेट में मैं पैन इंडिया काम कर रहा हूँ और सॉइल और रॉक दोनों एरिया में काम कर रहा हूँ. तो बेसिकली जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर की कमांड में होता है, बट इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए हमको किसी जियोलॉजिस्ट को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना होता है क्योंकि हमें उस रॉक को आइडेंटिफाई करना होता है अदर देन सॉइल. सॉइल में तो सिंपल लोग जानते हैं कि क्ले है या सैंड है या फिल्ड अप सॉइल है या ऑर्गेनिक मैटर है. तो दैट इज व्हाई आई हैव रेफर्ड टू दिस टर्म एज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू इंजीनियरिंग जियोलॉजी एंड जियोटेक्निक्स. नाउ इसको मैं एक एक लाइन में डिफाइन करता हूँ. जियोटेक्निकल एक्सप्लेन्स एंड सजेस्ट use of technically proven scientific methods to plan and build structures in soils and rocks that are safe, that can serve their purpose for 50 and 100 years, whatsoever time period they are built for, and they can ably sustain the earthquakes, seismic forces, etc. during their lifetime. Now, geotechnical engineering is the study of behavior of soils under the influence of loading forces, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर लोग जो बैठे हैं इस मीटिंग में ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं. डेड लोड, लाइव लोड, सीस्मिक, अर्थक्वेक लोड्स, विंड प्रेशर, स्नो लोड एटसेट्रा, एंड सॉइल वाटर इंटरेक्शंस. तो नाउ this knowledge is applied to the design of foundations of different and all kind of structures made by buildings, bridges, overhead tanks, rail electrification lines, transmission line towers, telecommunication mobile towers, underground semi-sunk sumps, foot over bridges, silos, industrial structures, and many more, which are used and utilized by us human beings for our very purpose, for our needs, to satisfy our needs. This also includes roads and airports also as well. As such, geotechnical engineering is very important for any construction occurring at or below the ground. Below the ground क्योंकि आज की डेट में हम लोग वर्टिकल ग्रोथ पे चले गए, बेसमेंट्स बहुत आते हैं, हमारे बिल्डिंग्स टॉल हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, इसलिए that is why I am referring to below the ground as well. Now, coming over to my next slide. What is engineering geology and geotechnics in very brief? Engineering geology is the application of geological information to aid in design of suitable foundations capable to withstand, sustain all probable loads to which these said structures might cater to during their lifetime. It comes into play while building and designing structures for mountainous, hilly and rocky terrains. Now, geotechnics. Geotechnics is concerned with the study and modification of soil and rocks. Why modification? जब हम कोई बिल्डिंग रखते हैं किसी सॉइल या रॉक पे तो हमारा सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं beneath the foundations उनमें भी कुछ एक्टिविटी होती है ड्यू टू द सेटलमेंट एटसेट्रा और उनका पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट होता है. और रॉक्स में अगर वीक रॉक्स हैं तो दे कैन फ्रैक्चर, दे कैन वेदर. दैट इज व्हाई जियोटेक्निक्स इज कंसर्न्ड with the study and modification of soil and rocks after the foundation has been laid on it. Now, foundation engineering, excavations, backfilling,
supporting ground structures, underground structures, dams, natural or artificial fills, roads, airports, subgrades for flexible and rigid pavements. फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट्स क्या होता है कि फ्लेक्सिबल इज द बिटुमिनस रोड जो हम यूज करते हैं, एंड रिजिड पेमेंट्स को कंक्रीट पेमेंट्स की टर्मिनोलॉजी में यूज करा जाता है. रिजिड पेमेंट्स आर यूजुअली बिल्ट समटाइम्स इन रोड्स जहां पानी की सीपेज की बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर देयर लॉन्गेविटी, एंड rigid payments are in part and parcel of airports. And slope stability assessments are examples of geotechnical engineering applications in practice. Now, coming over to my subject, why it is required, why it is necessary to do subsoil investigation for any new civil engineering project. तो मैंने कुछ 9 points बनाए हैं मेजर, जिसको आप लोग गौर से सुनिएगा. Reasons and issues addressed. Number 1 is to assess whether the soil or rock beneath the proposed structure can safely support it in reference to its bearing capacity and allow tolerable settlement. अब bearing capacity is referred to as shear criteria से जो हमारी bearing capacity निकलती है, और settlement में हमारे codes हैं जो buildings के लिए, overhead tanks के लिए, steel structures के लिए, concrete structures के लिए, हर तरीके की type of footing के लिए हमारे permissible settlement limit define है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में हम उस सेटलमेंट लिमिट के बियॉन्ड अलाउ नहीं कर सकते हैं टू सर्व इट्स पर्पस फॉर इट्स लाइफ टाइम. नाउ ग्राउंड वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर टेबल से मेरा मतलब होता है जो हम फर्स्ट ग्राउंड वाटर टेबल एनकाउंटर करते हैं अपने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में, इफ इट चेंजेस. ये क्या होता है कि प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून वैल्यूज होती हैं, तो दे चेंज, दिस वाटर टेबल चेंजेस. एंड अगर ये ब्लैक कॉटन सॉइल है तो इसका बड़ा अलग तरीके का रोल होता है, तो वहाँ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज आती हैं. तो इफ इट चेंजेस, हाउ विल इट इम्पैक्ट द स्ट्रक्चर एट द प्रोजेक्ट साइट इन रेफरेंस टू पोस्ट मॉनसून वाटर टेबल राइज. Point 3, for studying the impact of any excavation or backfilling on the foundations. क्या होता है जब भी आप कहीं फाउंडेशन डालते हैं तो उसी सॉइल को बैकफिल करते हैं, अगर वो प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं है तो वहां आपको थोड़ा सा सब्सिडेंस दिखेगा. अभी आप कोई भी मेट्रो पिलर्स के आसपास देखें तो जब रोड बनती है तो वहां आपके रोड के ट्रैफिक के साथ वो सब्सिडेंस होता है. तो इस वजह से इसकी स्टडी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है. और एक मैं कुछ पावर ग्रिड के जब प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं तो वहां ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में भी इसको बहुत फोकस करा जा रहा है कि जो बैकफिल सॉइल हम यूज कर रहे हैं वेदर दैट इज सुटेबल फॉर बैकफिलिंग और नॉट. Now coming over to my next point, point number 4, recommending different kind of foundations for different structures based on soil stratigraphy present at that very particular site. If there are many structures to be built at that site, होता क्या है कि आजकल टाउनशिप्स आती हैं, वहाँ आपका कॉमर्शियल बनना है, रेजिडेंशियल बनना है, ओवर टैंक्स बनना है और चीजें हैं, तो हमारे हर स्ट्रक्चर के लिए हमें डिफरेंट टाइप की फाउंडेशंस देनी पड़ती है. और सॉइल स्ट्रेटिग्राफी में वेरिएशन हो सकता है कि इट कैन बी सॉइल क्ले सॉइल, इट कैन बी क्ले सैंड, एंड देन फर्दर रॉक, या clay layer may be sandwiched in between two sandy layers, etc., and so on. There can be many permutations and combinations in it. तो हमें हर स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के हिसाब से उस सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ने के साथ उसमें जो बेस्ट फिजिबल है, इकोनॉमिकल है, वो रिपोर्ट करनी होती है. Point 5, to study the stability of natural proposed earth slopes as the case may be. If they are not stable, then finding ways to stabilize them. अब ये अर्थ स्लोप्स का क्या होता है कि जैसे हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आते हैं, या हमारा रोड का एम्बैंकमेंट है, रेलवे का एम्बैंकमेंट है, या और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपके पावर प्लांट्स जहाँ लगते हैं, तो वहाँ ये स्लोप्स की जरूरत होती है उनकी स्टडी की, बनाने की, स्टेबिलिटी के लिए. तो दैट इज वाई दिस पॉइंट नंबर 5. Point 6 is designing retaining walls. Everyone knows कि retaining walls की कहाँ जरूरत पड़ती है, if required, and suggesting its type and kind based on soil strata present at the site. Point 7, assessing the responsiveness, stability, and safety of foundations towards any potential earthquake and seismic activity. तो ये आज की डेट में बहुत फोकस और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोकल पॉइंट है स्ट्रक्चर डिजाइनर्स के लिए और हमारे लिए. कारण ये है कि इंडिया पहले 5 सीस्मिक जोन्स में डिवाइड हुआ था, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसको 2, 3, 4 एंड 5 कर दिया गया. पर अभी लेटेस्ट एक मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो नाउ अब वहाँ 6 जोन्स करे जा रहे हैं. उसमें कुछ कोर्स में मेजर रिविजन्स होने जा रहे हैं, जिसको कुछ रिटर्न पीरियड से वो कोरिलेट करेंगे, इंस्टेड ऑफ जो A max/G हमारा सीस्मिक रिस्पॉन्स फैक्टर होता है. तो इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज ये स्ट्रक्चर इंजीनियर की फील्ड है. Now doing a liquefaction analysis of the site. Liquefaction potential आज की डेट में earthquake से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी उपलब्ध हुई है आज की डेट में कि ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. पहले इस पे ध्यान नहीं देते थे. तो लिक्विफाई सॉइल हो सकती है ड्यूरिंग earthquake.
तो इसका एनालिसिस फाउंडेशन डिजाइन में बहुत जरूरी है बिफोर रिकमेंडिंग द डिजायर्ड फाउंडेशंस. नाउ असेसिंग ग्राउंड कंटेमिनेशन इफ एनी. ग्राउंड कंटेमिनेशन से मतलब हमारा ये है कि हम सॉइल में कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स अलोंग विद पीएच वैल्यू टेस्ट करते हैं. एंड इफ एनी देयर पॉसिबल हेल्थ सेफ्टी हजार्ड्स, इफ सो देन डिवाइजिंग मेथड्स टू रेक्टिफाई इट. जिसको हम बोलते हैं कि हार्मफुल साल्ट्स अगर आ गए तो हम वहाँ किस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे जो हमारी फाउंडेशन पे सीपेज कैपिलरी एक्शन के थ्रू वॉल्स पे राइज ना करे और कोई हमारी बाद में बिल्डिंग को डिस्टर्ब ना करे इन द सेंस कि प्लास्टर वगैरह झड़ जाता है. दैट इज व्हाई दिस ग्राउंड कंटेमिनेशन. नाउ पॉइंट 5. अब ये जो मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं ये आप लोगों की जानकारी की बात हो. एक हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 1892 जो कि 2021 में रिवाइज हुआ है. और इसमें जैसे कॉमन एक लोगों का फेनोमेना है कि भाई स्ट्रक्चर की शुरुआत में केवल सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए. तो ये हम करते आए, हमें पता था, लेकिन अब कोड्स में ये इम्प्लीमेंट हो गया है कि आप 5 स्टेजेस में भी सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं. साइट रिकॉग्नाइजेंस क्या है कि ये बेसिकली अगर हम कहीं किसी हाईवे पे या ब्रिज प्रोजेक्ट्स पे जाएं या बिल्डिंग्स पे जाएं, बड़ा एरिया आपने कई हेक्टेयर्स लैंड ऑक्यूपाई करी या एक्वायर करी, तो जनरल टोपोग्राफी सर्वे एंड स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स की वहाँ कुआं है कि नहीं है, कुएं में पानी कितना है, कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है कि नहीं, अगल बगल कोई बिल्डिंग्स हैं, प्रोफाइल कैसी है, कोई नदी नाला तालाब छोटा तो नहीं है, इसलिए साइट रिकॉग्नाइजेंस. नाउ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि वी डू अ लिमिटेड नंबर ऑफ बोरोस just to know about the subsoil profile being present there at the site, जिसको मोटा मोटा एक लेमैन भाषा में या सॉइल जो हम सैंपल लाते हैं सॉइल टाइप वेरीफाई कर लें, वहां की ग्राउंड वाटर टेबल वेरीफाई कर लें. बट नाउ कम्स टू द फोर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, कंस्ट्रक्शन स्टेज इन्वेस्टिगेशन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज इन्वेस्टिगेशन. तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है सर कि अभी हम मान के चलिए कि आपने डिसाइड करा था भाई एक एरिया है वहां हम 5 बिल्डिंग्स ला रहे हैं, एक एक बोरोल कर लो. तो अब ये हुआ कि डिफाइन होगा कि एक बिल्डिंग हमारी 20 स्टोरी जाएगी, एक 10 स्टोरी जाएगी और एक 8 स्टोरी जाएगी लाइक वाइज. तो हम हर बिल्डिंग में हमें 3 बोरहोल्स करने चाहिए. और डेप्थ ऑफ बोरहोल के बारे में आगे जिक्र करूंगा, डिटेल में तो नहीं लेकिन एक हिंट करूंगा आप लोगों को. तो हमें बोरहोल नंबर ऑफ बोरहोल्स, द डेप्थ ऑफ बोरहोल्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन कि उस एरिया में हम किस तरीके का स्ट्रक्चर ला रहे हैं. तो वहां हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हम एन वैल्यूज भी करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट वैल्यूज. तो देयर वी गो to do subsoil stratum profiling, recording field and values, identifying soil type, defining its characteristic properties, including preparation of all relevant in situ laboratory test results and harmful SARS analysis. Now, construction stage investigation क्या होता है? Additionally required. Why? Because you may encounter a few soil conditions which may not match with your initial site investigation work which was already reported. इस केस में क्या है कि एक तो आप उसी पार्टी को कॉल बैक कर सकते हैं इसने पहले करा था, किसी सेकंड या थर्ड पार्टी से भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं. तो ये कोड ने अब स्पेसिफाई कर दिया कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज ऑल्सो you can get the soil investigation redone in case it is required for any verification purposes. Now post construction stage investigation क्या होता है कि ये बेसिकली बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स में आ सकता है, मेट्रो में आ जाता है. मान लीजिए कहीं मेट्रो स्टेशन आप बना रहे हैं और कोई वहाँ आपकी सीवर लाइन जा रही थी, वाटर लाइन जा रही थी, कोई अंडरग्राउंड सीपेज हो जाए, तो वहां क्या होता है फॉर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सॉइल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब स्ट्रक्चर्स एंड फाउंडेशंस if required and maybe for any other site related engineering reasons जो कि हमारी actual site execution के समय कभी problems आ सकती हो, तो उनको रेस्टोर या दूर करने के लिए, उनके निवारण के लिए हमें ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा करने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. मे बी हमारी बिल्डिंग खड़ी होने के बाद कोई ऐसी अंडरग्राउंड प्रॉब्लम हो जिसको हमें फेस करना पड़े, उसके लिए भी हम ये इन्वेस्टिगेशन करने जा सकते हैं. नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ये मानकर चले कि मैं अपने प्रेजेंटेशन के एंड पे हूं, लेकिन इसके बाद मैं 3 स्लाइड्स और आपको शो करूंगा जो इस स्लाइड को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? जियोटेक्निकल इश्यूज मे बी सिंपल, that are easy to resolve and one can find a relevant solution easily for the site. They may be complex. For difficult sites need extensive exploration, testing and analysis.
अब कॉम्प्लेक्स साइट्स हमारी मेजर ब्रिज साइट्स हो सकती हैं या ऐसी टेरेन में हो सकती है या हमारी सॉइल प्रोफाइल बहुत मेजरली और फटाफट चेंज कर रही हो, कहीं हमें पाइल फाउंडेशन देना हो, वहां कोई कैविटी आ गई हो, आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स किस तरीके के हो सकते हैं। नाउ द जियोटेक्निकल कंसर्न्स affect both the technical and economical feasibility of the project site. तो डियर फ्रेंड्स, आई वुड आस्क यू ऑल कि हमारा इन्वेस्टिगेशन एक बार हो जाना चाहिए, अच्छे से हो जाना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिसाइड करेगा. बट यू हैव टू सर्च फॉर good geotechnical consultants. Therefore, it is in the best interest of the project for the client and the architect, even the structural designer concerned, to get an extensive geotechnical investigation done at the very start of it, so as to be able to adopt most cost-effective and safe foundation design solutions. In a nutshell, in the end, what I would like to say is geotechnical engineers are and must work as part and parcel of the team of professionals comprising field civil engineers, site engineers, architects, structural engineers, and all others concerned in a most productive way right from the start of the project, during its execution, until the end of it, because we may find something uncommon during the actual execution of the project, and then we need to be there for everyone concerned with that very project. Now coming over to my 7th slide, which is extensive geotechnical investigation. अब ये जो मैं पैराग्राफ बोलने जा रहा हूँ, ये जरा गौर से आप लोग सुनिएगा. हमने कहा कि गवर्निंग फैक्टर्स आर द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. तो आप कहेंगे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्यों? तो भाई, बिकॉज गवर्निंग फैक्टर्स are the kind of a structure to be built that is single double story buildings, lightly heavily loaded structures, a few 4 to 5 storied building, a multi-storied building, or a tall building. आज के डेट में हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 16700 भी आ गया फॉर टॉल बिल्डिंग सेपरेटली. इसमें उन्होंने मिनिमम एम्बेडमेंट डेप्थ का जिक्र करा है फॉर पाइल फाउंडेशंस एंड फॉर राफ्ट फाउंडेशंस आल्सो एज वेल. टाइप ऑफ ब्रिज, देयर स्पैन लेंथ, नंबर ऑफ स्पैन्स एंड कैरिजवे विड्थ, जिसके ऊपर हमारी फाउंडेशन की रिकमेंडेशंस डिपेंड करती हैं. और लीनियर स्ट्रक्चर्स लाइक रोड्स, रेलवेज, एम्बैंकमेंट्स, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, सीवर लाइंस, बाउंड्री वॉल्स, ट्रांसमिशन लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन लाइंस, एटसेट्रा. And the geological terrain, whether the structure is to be built in plains or in hilly areas, kind of tentative anticipated foundation to be built for these respective structures, as well the area and the length to be covered by them. तो जो मैंने 4 पॉइंट्स बोर्ड में बोले हैं, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल टेरेन, एंटिसिपेटेड फाउंडेशन, एरिया एंड लेंथ टू बी कवर्ड, इसके बेसिस पे हमारे नंबर और डेप्थ ऑफ बोरहोल्स का डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी होता है. नाउ the above information in turn can help us decide on the location of boreholes to be explored, the number of boreholes required to be explored at the respective site, with the decision regarding the depth of boreholes to be explored. अब इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूं, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की क्या महत्ता हो सकती है, मैं वर्ल्ड फेम के 3 स्ट्रक्चर्स की फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूं एक एक लाइनों के साथ. इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा. नाउ फाउंडेशंस फॉर योर इमेजिनेशन, ये हूवर डैम है, नेवादा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बना है. ये आर्च ग्रेविटी टाइप डैम है. तो क्या है कि रॉक्स है और इसको इन्होंने पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप कर दिया, लोग वहां घूमने भी जाते हैं. तो इसमें मल्टीपल फाउंडेशंस हैं. तो दैट इज मल्टीपल फाउंडेशंस अलोंग विद रिटेनिंग द रॉक्स लेफ्ट ओवर फॉर ऑल ऑफ योर इमेजिनेशन. बिकॉज किसी एक प्रोजेक्ट में एक तरीके की फाउंडेशन जरूरी नहीं हो, 2-3 तरीके के भी 2-3 तरीके के ज्वाइंट मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो बने होते हैं उन पे जरूरत होती है. नाउ द चेनाब ब्रिज, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में, जो अभी इंडिया का लॉन्च हुआ है, जिसकी हाइट आईफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है, 359 मीटर्स का. इसमें ये आज मैं बताऊं को डॉक्टर TG सीतारमन साहब इन्वॉल्व हुए हैं. ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में थे, फिर IIT गुवाहाटी में थे, आजकल AICTE को हेड कर रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को. मैं इनसे मिला हूँ. तो यहाँ की फाउंडेशन जो है कि ये स्टेप्ड लैडर फाउंडेशन से, आपको काफी इमेजेस मिल जाएंगी विकिपीडिया पे. तो यहाँ पे जो फाउंडेशन है उसमें रॉक की प्रोफाइलिंग करना, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, कैसी फाउंडेशन देनी है, you can very well imagine the kind of infrastructure growth which India is encountering. की geotechnical engineering बहुत important subject है, as well as
कहीं ग्राउंड इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है कि वो साइट आपकी है, कोई साइलो बनना है। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट करा था जिसमें करीब 32,500 टन का लोड आ रहा था, तो वहाँ कोई भी फाउंडेशन सुटेबल नहीं थी, तो वहाँ मैंने ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के लिए फिर स्टोन कॉलम्स उनको रिकमेंड करे थे। तो कहने का मतलब है कि यू कैन see and face the importance of geotechnical engineering because of the scarcity of land also as well. Now coming over to my last slide. ये बुर्ज खलीफा दुबई में जो यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में एक बिल्डिंग बनी है, तो ये आपको मैंने इमेजेस दिखाई है कि 3 इमेजेस हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और एक के मैंने 3D व्यू दिया है। यहाँ पाइल्ड रेफ्ट फाउंडेशन बनी थी और इसके पीछे बहुत सारा डिजाइन फैक्टर्स इनबिल्ट थे, जो मैंने ऊपर हेडलाइन में लिखा है, फाउंडेशंस एंड डिजाइन फोर्सेस टू बी इमेजिन्ड विद द काइंड ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सच अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। तो इन्होंने वाई शेप में फाउंडेशन दिया था और पाइल 43 मीटर डीप गई थी और शायद 194 पाइल्स थी यहाँ, जस्ट टू हमें जो ओवर टर्निंग और विंड फोर्सेस हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए, और 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए ये बिल्डिंग डिजाइन हुई, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इट्स अराउंड शायद 830 मीटर्स ऑल्सो। तो आई थिंक आई हैव told what I wish to explain you all, और आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराग कपूर जी।